Okay, so let's start. So today we'll start the topic on counter. So as such, as you know, we have already studied the flip-flops and then the applications of flip-flop as a shift register. In shift register, to little bit, we are using that shift register to store the any data and to shift it accordingly, maybe in the left side, maybe in the right side, or in the both bidirectional, and then the universal shift register, which can do anything, either serial input or parallel input plus serial output or parallel output. So all the combinations that we have seen. Now we are going for a topic related, relatively related, but not exactly. That is counter. So it will do a counting of a bits, we can say. So how that counting will be then? Let us see. Now this counter that we are going to study is, we can say, will have the different types. Like one will be asynchronous and another is synchronous. Now to little bit you have already the idea what does asynchronous and synchronous means. Till now we have seen some of the examples of synchronous. Now we'll see some examples of asynchronous. In asynchronous we are going to study a ripple counter. We'll start with this ripple counter and then we'll see the synchronous counter, where we know synchronous counter means where all the flip-flops of the counter or registers are synchronized by a common clock. So that will be a synchronous. Whereas in asynchronous, you cannot say that all the clocks are common, but there may be some difference. So counter basically is classified as asynchronous and synchronous. And then in another way, it is also classified as up counter, a down counter, and we can say both up down counter, where we have both the flexibility that it can go in the up sequence or in the down sequence. So up counter means like 0, 1, 2, 3. In this way, if it is counting, we can say up counting. If it is going like a, suppose a 7, 6, 5, like this one up to 0, or in this way. And in up down counter we'll have certain control, whereby if I put something, let's say m equal to 0, it should do up counting. If I say make its mode as 1, so it will do down counting. So we'll see one by one each and everything. So let us start with very first asynchronous ripple counter. So are you ready? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So I actually need not write asynchronous, but it is a asynchronous. Actually the counter's name is a ripple counter, and you can say a ripple counter is a asynchronous counter. So till now you have not seen an example of asynchronous. So we'll see the examples of a ripple counter. Now in this already, if you can recall, we have seen a JK flip-flop in a toggle mode. This is nothing but the JK flip-flop or T flip-flop to be connected in a toggle mode, and all the flip-flops that are in a toggle mode means if it is a J and K both is there, let's say this is a J and this is K, this is Q, this is Q bar, and a negative age triggered clock is there. Let's say there is a preset and clear as usual. Okay, and now if I want to make a ripple counter of this one, how to do it? We do by just like this one. We cascade all the flip-flops in such a way that if I am providing the clock to this, the output of first JK flip-flop which is connected in a toggle mode is connected to the next clock. Similarly, output of this is connected to the next clock, and all the J and K are connected in a toggle mode. Toggle mode में कब होगा? जब इसको हम लॉजिक 1 देंगे, इसको लॉजिक 1 देंगे. ऐसे कितने भी कैस्केड कर सकते हो. तो लेट अस से फॉर द टाइम बीइंग वी आर सीइंग द 3-bit ripple counter. Let us see.
एंड जिसको क्लॉक देते हैं वो LSB होता है। तो ये J0 K0 Q0 Q0 बार, J1 K1 Q1 Q1 बार, J2 K2 Q2 Q2 bar, like this you can see. And all the clear and preset you can make a common in order to control the clearing of or presetting of all the flip flops. ये सब प्रीसेट भी कॉमन कर दिया है कि सपोज ऑल ऑफ ए सडन अगर आपको प्रीसेट यानी सबको 1-1-1-1 करना है तो जस्ट क्या करेंगे आप यहाँ पे इसको लो दे देंगे, वैसे क्लियर करना है तो क्लियर को लो दे देंगे, अदरवाइज वो दोनों हाई रहेगा। ठीक है, तो हमने यहाँ देख लिया कि सभी के जेके किस कनेक्ट, अगर इसी को मैं टी फ्लिप फ्लॉप से बोलता तो आप जेके की जगह टी लिख देते थे। तो ये समझ में आया कि पहले डायग्राम ये बताओ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम समझ में आया क्या? ये डायग्राम आपको बनाते आना चाहिए। तो ये समझ में आ गया होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। यस सर। क्या किया हमने? क्या किया हमने? एक फ्लिप फ्लॉप लिया जिसको टॉगल मोड में कनेक्ट किया और उसी फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के टॉगल मोड के क्लॉक को दिया। मतलब आउटपुट ऑफ फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप इज अ इनपुट टू द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। सिमिलरली आउटपुट ऑफ दैट फ्लिप फ्लॉप इज अ क्लॉक इनपुट फॉर द नेक्स्ट स्टेज। ऐसे करते करते हम आगे बढ़ रहे हैं। इस तरीके से वो डायग्राम। तो एक आधा छोटा सा मैं डायग्राम आपको रेडीमेड दिखाने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया आएगा। बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता, पर यही चीज अगर इससे भी बनाते आप टी फ्लिप फ्लॉप से तो जेके की जगह टी दिखाना पड़ता था आपको। ठीक है, चलो तो ये डायग्राम मैं करता हूँ। अब यहाँ थोड़ा दिमाग को हमको जोर देना है कि ये कैसे वर्क करेगा। इतना तो पक्का है कि इसके सब ट्रांजिशन जो है वो क्लॉक के साथ में होंगे। ऐसा ही डायग्राम है मैंने जो बनाया, देखो तो जरा। अब जरा एक चीज पर कंसंट्रेट करते हैं और फिर धीरे धीरे बढ़ते हैं। पहला यानी ये अगर ये जो फ्लिप फ्लॉप अगर मैंने पकड़ लिया इसको यहाँ पे, इसको यहाँ एक्सप्लेन करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अगर इसको मैंने यहाँ पे क्लॉक दिया है और इनके दोनों के ये जो JK1 में लिया हुआ है तो इसका आउटपुट हमने ऑब्जर्व तो किया था ना, इसका कैसे आउटपुट आता था बता सकते क्या आप लोग? इसको अगर मैंने ये क्लॉक दिया था और अभी मैंने डिक्लेयर कर दिया कि ये निगेटिव एज ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है। निगेटिव एज ट्रिगर्ड है, कैसे पता चला? पहले तो फ्लिप फ्लॉप के इसमें ये ऐसा ट्रायंगुलर दिखा है तो एज ट्रिगर्ड हो गया। फिर इसमें बबल लगाया है क्या मैंने कि मैं भूल गया, बबल लगाया है मैंने। ठीक है, सब में बबल लगा हुआ। तो ये है निगेटिव एज ट्रिगर्ड जेके फ्लिप फ्लॉप। तो इसका ये मतलब है कि जो भी चेंजेस आएंगे वो इसके ये निगेटिव में। अब इनिशियली मान के चल लो यहाँ पे हम कि ये Q0 इनिशियली 0 था। चलो आगे बढ़ा जाए, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जब तक कि निगेटिव एज नहीं आती ये तो साथ में लो ही रहेगा, बराबर है, नो चेंज। अब जैसे ही निगेटिव एज आ गई तो क्या होगा? ये बोलता है कि इनपुट्स देखो, इनपुट्स क्या है? J0 इक्वल टू K0 इक्वल टू 1। तो ये क्या करेगा? J और के जब दोनों 1 रहते तो क्या करना पड़ता है? J और के दोनों 1 रहे तो क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है आउटपुट। हाँ, आउटपुट का कॉम्प्लीमेंट। तो आउटपुट इनिशियली 0 है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये 1 हो गया। अब क्लॉक लो है, अब क्लॉक हाई है। क्लॉक हाई है तो क्या होगा? कुछ नहीं, नो चेंज। कुछ होगा क्या? नो चेंज। अब नेक्स्ट एज आ गई, निगेटिव एज। जब चेंज होता है निगेटिव एज आ गई, इनपुट देखो, इनपुट परमानेंटली JK1 किया हुआ है तो टॉगल करेगा। इसका मतलब इस तरीके से आएगा। ये ऐसे ही चलते रहेगा, हर निगेटिव एज में ये टॉगल करेगा, ये टॉगल करेगा, ये टॉगल करेगा। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, अगर आपको याद हो रहा है, ये देखा है हमने। और तब हमने बोला था कि इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये क्लॉक के फ्रीक्वेंसी से हाफ हो जाती है। मतलब ये इस तरीके से स्प्रेड होता है कि अगर इसका टाइम पीरियड ये है, ये इसके टाइम पीरियड है तो यहाँ इसका टाइम पीरियड इसके डबल रहता है, इसके डबल रहता है। इसका मतलब क्या है कि जो टाइम पीरियड है वो डबल हो जाता है, फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाती है। ये ध्यान में आया क्या? इतना आउटपुट आपके ध्यान में आया क्या? इतना बताओ। यस सर।
तो इसका ये मतलब है कि यहाँ जो क्लॉक दिया था, तो ये यहाँ का क्लॉक बाय 2 हो गया, मतलब फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, बराबर है। अब इसी का आउटपुट नेक्स्ट स्टेज को ऐसे ही सिमिलर को देंगे, तो वो उसका हाफ होगा कि नहीं। आप देखो, ये पहले वाले को आपने क्लॉक दिया है, तब इसके यहाँ पे आउटपुट क्या आता है, बड़े बड़े क्लॉक आते हैं, मतलब डबल साइज के, बराबर है। अब ये वाला इसको इनपुट है, तो यहाँ पे और भी उसका हाफ होना चाहिए। फिर ये वाला इसको इनपुट है, फिर और भी यहाँ हाफ होना चाहिए। ये ध्यान में आ रहा है कि देखो तो जरा। यस सर। अब देखो, हम स्टेप बाय, ये मैंने जस्ट कॉन्सेप्ट वाइज बताया, अब स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, ठीक है। अब स्टेप बाय स्टेप कैसे जाएंगे, चलो देखते हैं कि हम पहले से उसको फिगर बनाते हैं और फिर देखते हैं कि ये काउंटिंग किस तरीके से कर रहा है। तो मैं डायग्राम फिर से बना रहा हूं ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। तो ये डायग्राम आपके ध्यान में आ रहा है, क्या किया है, सिंपल याद रखो, कोई भी एक फ्लिप फ्लॉप, जैसे सपोज टी फ्लिप फ्लॉप है तो उसको 1 दे दिया, ये पहला एलएसबी कहलाएगा, और इसको यहाँ पे क्लॉक देंगे, इसका आउटपुट ये नेक्स्ट के क्लॉक को जाएगा, इसका आउटपुट ये नेक्स्ट के क्लॉक को जाएगा, बस यही चलते रहेगा, यही चलते रहेगा। और हर जो टी है उसको 1 करना है, जेके है तो उसको 1 करना है, बस हो गया। ये Q0 रहेगा तो ये Q1 रहेगा, ये Q2 रहेगा, और इस तरीके से हमको आउटपुट Q2, Q1, Q0 मिलेंगे। यहाँ पे Q0, Q1 और Q2 आउटपुट मिलेंगे, ठीक है ना, इस तरीके से। तो एक कॉन्सेप्चुअली आपके ध्यान में आ गया। बाकी सब तो ये सजावट है कि प्रीसेट, क्लियर, कॉमन करना, ये तो सब उसका ऐसा बोल सकते हैं हम, प्रसाधन है, उसका ब्यूटिफिकेशन है जो कभी काम पड़ सकता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो इसका वर्किंग शुरू करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, विल गिव अ क्लियर इक्वल टू 0 दैट विल एंश्योर अस दैट Q2, Q1, Q0 इक्वल टू व्हाट, क्या होगा बताइए। क्लियर 0 देते ही क्या मिलेगा, 0 0 0। तो इसका मतलब इनिशियली Q2, Q1, Q0, Q2, Q1, Q0। और ये सब जो क्लॉक है, ये जो क्लॉक है ये निगेटिव एज ट्रिगर्ड है, मतलब इसके निगेटिव में काम करेगा, ये समझ, ये इसलिए मैंने यहाँ एरो डाल दिया, यहाँ एरो डाल के रख दिया। अब इनिशियली हमने बोल के रखा है कि ये Q0, ये Q1 और ये Q2, ये सभी 0 0 0 है। अब हम एक एक देखेंगे, कब देखेंगे, चेंजेस हमको मालूम है कि निगेटिव एज में होते हैं, तो एक एक देखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप लोग सिर्फ मुझसे कनेक्टेड रहो, then you will follow the sequence and you will find this counter is most interesting part। और जब इसको एक्चुअल प्रैक्टिकल में देखते तो और भी बेहतरीन लगता है, तो ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो और जब इसका आउटपुट जो आएगा वो आपको सरप्राइज करेगा, अभी मैं आपको वो सस्पेंस रिवील नहीं कर रहा हूँ। तो इनिशियली ऑल दिस थिंग्स आर 0, और यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ, ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है। अब बताओ, पहला क्लॉक आते ही कहाँ पे चेंज होगा, जैसे क्लॉक का निगेटिव एज आ गया, यहाँ पे ये क्लॉक का निगेटिव एज आ गया तो Q0 टॉगल होगा ना। यस सर। तो ये जो टॉगल होगा, यानी क्या था, 0 था तो क्या मिलेगा, 1, ये 1 मिला। और फिर क्लॉक लो है, फिर क्लॉक हाई है, तो नो चेंज ही आएगा। कब चेंज होता है, सिर्फ यहाँ पे निगेटिव एज में, अदरवाइज चेंज नहीं होता है, बराबर है। यस अब Q1 में क्या होगा, Q1 को क्या मिला, Q1 का क्लॉक का इनपुट क्या है, देखो तो जरा। Q1 का जो क्लॉक का इनपुट है वो है Q0, यानी जो Q0 आउटपुट है वो एक्टिंग एज अ क्लॉक टू द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। Q1 is acting as a clock to the flip flop 2. You are getting it? That Q0 is acting as a clock to flip flop 1. Q1 is acting as a clock to flip flop 2. That's why we can say इसका जो आउटपुट आ रहा है Q0 will act as a clock to this Q1. तो क्लॉक अभी यानी Q1 के लिए, यानी फ्लिप फ्लॉप 1 के लिए क्लॉक अगर हाई हो गया तो वहां तो नो चेंज ही आएगा, क्योंकि कब चेंज आएगा, वो चेंज कब आएगा, निगेटिव एज जब तक नहीं आती तब तक। अभी Q1 0 हो गया तो Q2 भी जैसा का वैसा नो चेंज आएगा, क्योंकि Q2 कब चेंज होगा, जब Q1 की फॉलिंग एज आएगी। Q1 कब चेंज होगा, जब Q0 की फॉलिंग एज आएगी। अब जरा इस पर पहला क्लॉक का अपन ने ऑपरेशन देख लिया, यहां से यहां तक के, ये पहले क्लॉक का देख लिया।
अब नेक्स्ट क्लॉक आ गया, क्या करने का, निगेटिव एज आ गई, टॉगल करेगा ना? यस सर। यस, ये टॉगल कर दिया, ये यहां से यहां तक लो रह गया, फिर इसकी हाई आई, नो चेंज, यहां तक बैठ के बैठा हुआ है। अब बताओ Q1 क्या हुआ, 1 to 0 हुआ कि 0 to 1 हुआ? देखो 0 to 1। नहीं, Q0 ये क्या है, ये 1 और ये 0, इसका मतलब ये फॉलिंग एज है कि नहीं? यस। हेलो, सो दिस विल एक्ट एज अ नेगेटिव एज टू द नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप। और अब नेगेटिव एज आ गई तो Q1 क्या मिलेगा मुझे बताओ, Q1, क्योंकि अब फॉलिंग एज आ गई थी, ये टॉगल करना चाहिए। देख रहे हैं आप, देखो ये जो आउटपुट, अगर ये पहले लो था फिर हाई गया, अब ये फॉलिंग एज आ गई, इसका मतलब इसको निगेटिव एज मिल गई नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप को, तो यहाँ पे अब ये इसको टॉगल करेगा, तो ये 0 का 1 होगा। ये समझ में आया क्या मुझे बताओ? जब फॉलिंग एज ऑफ Q0 आई, जब निगेटिव एज ऑफ Q0 आई तो Q1 टॉगल हुआ। ये समझ में आया क्या? सभी को समझ में आया क्या, बताओ जरा। यस सर। ओके, किसी को कोई तकलीफ हो तो फिर से पूछ लो। मैं बोलने का ये बता रहा हूँ कि इस फ्लिप फ्लॉप को, इसके जेके दोनों 1 है और ये निगेटिव एज ट्रिगर्ड है, तो अगर ये क्लॉक जाता है ऐसा, तो यहाँ चेंज सिर्फ इस निगेटिव एज में होता है, तब ये यहाँ का आउटपुट टॉगल होता है। सिमिलरली इसका आउटपुट जब कुछ भी चेंज होगा तो इसके निगेटिव एज में नेक्स्ट क्लॉक को चेंज करेगा, इसके निगेटिव एज में। सेम वे हो रहा है, इस क्लॉक के इस निगेटिव एज में यहाँ पे चेंज हुआ, इस आउटपुट के इस निगेटिव एज में यहाँ चेंज हुआ। अब Q2 क्या होगा इस समय में, Q2 क्या होगा, देयर विल बी नो चेंज। नो चेंज। यस, देयर विल बी नो चेंज। अब फिर से निगेटिव एज आ गई नेक्स्ट क्लॉक की, यहाँ नेक्स्ट क्लॉक की फिर से निगेटिव एज आ गई थी, ये फिर से टॉगल करेगा, ये टॉगल कर दिया, ये नो चेंज और फिर से नो चेंज, ये कंटिन्यूअस इस तरीके से टॉगल करेगा। अब ये जो आउटपुट Q0 है, ये राइजिंग एज है, राइजिंग एज है तो कोई चेंज आएगा क्या, कोई टॉगल करेगा क्या Q1 में? नहीं करेगा, इसलिए नो चेंज। सिमिलरली Q2 में कोई चेंज आएगा क्या? नहीं, क्योंकि ये हाई है, क्लॉक इसका हाई है, कोई चेंज नहीं आएगा। फिर से एक निगेटिव एज आ गई, नेक्स्ट क्लॉक की निगेटिव एज आ गई, ये टॉगल करेगा। अब बताओ Q0 फॉलिंग एज है कि राइजिंग एज है? फॉलिंग एज। यस, तो अब टॉगल करना चाहिए ना Q1 ने। यस। तो करूं, ये टॉगल कर दिया। अब Q1 की फॉलिंग एज है कि राइजिंग एज है? फॉलिंग एज। तो अब टॉगल करेगा ना Q2। यस सर। अब देखो ये टॉगल कर दिया, अब फिर से यहाँ पे निगेटिव एज आ गई, ये फिर से टॉगल कर दिया, ये यहाँ तक सेम है। ये इसको पहले कंटिन्यूअस इस तरीके से हर क्लॉक में टॉगल करवाओ और सबके निगेटिव एज फाइंड आउट करके वहां पे चेंज करो, तब तक के नो चेंज करो, तब तक नो चेंज रखो। जैसे ही फॉलिंग एज आती है इसको टॉगल करो, जैसे ही फॉलिंग एज आती है इसको टॉगल करो, ठीक है। सेम वे यहाँ पे जा रहा है, ये नो चेंज ही आएगा यहाँ से आता, क्योंकि ये राइजिंग एज है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और एक दो क्लॉक के साथ में दिखाता हूँ और आपको तब पता चलेगा कि कैसे चेंज आता है। जैसे इसके ये फॉलिंग एज में ये चेंज आ रहा है, इसके ये फॉलिंग एज में फिर ये चेंज आता है, यहाँ पे इसकी फॉलिंग एज आ गई तो यहाँ चेंज आ गया है, सॉरी हो गया, ये वाली इसकी फॉलिंग एज आ गई तो यहाँ पे चेंज आता है, ऐसे कंटिन्यूअस चलेगा। अब जरा सीक्वेंस पे ध्यान दो, जरा देखो ये पहले क्या था, 0 0 0, क्या है Q2 Q1 Q0 आपने जब क्लियर किया था तो 0 0 0, हेलो। यस सर। उसके बाद क्या हुआ देखो तो जरा, 0 0 1, ये Q0 टॉगल हुआ था, ये दिख रहा है आपको, ये 0 0 0, इसके बाद ये 0 0 1, इसके बाद देखो 0 1 0, इसके बाद देखो 0 1 1, अरे ये तो बाइनरी काउंटिंग ही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देखो इसके बाद ये 1 0 0, ये बाइनरी काउंटिंग कर रहा है। अब आपके ध्यान में भी नहीं है कि ये इस तरीके से कैसे जा रहा है कि 1 0 1 1 1 0 और तीनों 1 होते हैं, इसके बाद वापस से वो 0 0 0 होता है। देखो तो जरा होता है कि नहीं, ये 0 0 1, ठीक है, 1 0 0, ये 1 0 1, ये 1 1 0, ये तीनों 1 हो गए यहाँ पे, और देखो यहाँ पे वापस ये 0 हो गया।
आ गया ध्यान में यहाँ तक? और इस सब चीजों के लिए यहाँ पे कितने क्लॉक लगे जरा देखो तो सही। ये 5वां, ये 6वां, ये 7वां और 8वें क्लॉक में वापस तुम रिसेट हो गए। हो गया? तो 8 क्लॉक लग रहे हैं आपको, 8 क्लॉक। इसका मतलब जितने स्टेजेस रहेंगे, n स्टेज को 2n काउंटिंग करेगा। कैसे? 0 0 0 2, ये कितना किया? 1 1 1, यानी ये किया 8, तो 3 फ्लिप फ्लॉप थे, तो आपको 2⁻³ 8 काउंटिंग किया उसने, 0 to 7। इसको स्टेट्स भी बोलते हैं, इनको स्टेट्स बोलते हैं कि ये ऊपर इसको स्टेट यानी S0 स्टेट, S1 S2 ऐसे करते करते S7। आप इसको स्टेट डायग्राम में इस तरीके से दिखा सकते हैं कि ये S0, इसके बाद नेक्स्ट सीक्वेंस S1, इसके बाद नेक्स्ट सीक्वेंस एरो दिखाते हुए S2, S3, S4, S5, S6 और S7 और वापस से S0। तो इस तरीके का काउंटिंग सीक्वेंस है, ये स्टेट डायग्राम इसका। तो आपके ध्यान में आया क्या? अगर आप इसको थोड़ा सा इससे देखें तो क्या होगा कि हमने सबसे पहले बताया कि ये जो चीज है, ये एक जेके फ्लिप फ्लॉप कनेक्टेड इन ए टॉगल मोड, ये इस क्लॉक को डिवाइड बाय 2 करता है। यही वाली क्लॉक नेक्स्ट स्टेज को दे दिए तो उसको डिवाइड बाय 2 कर रहा है, उसके बाद दिए तो वो और भी डिवाइड बाय 2 करता है। देखो आप अभी कि इसका टाइम पीरियड यहां से यहां तक के 2 है, इसका टाइम पीरियड यहां से यहां तक के 4 है, इसका टाइम पीरियड 8 है, यानी कि डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 2, ईच स्टेज वो डिवाइड बाय 2 करते जाता है। ये आपके ध्यान में आ रहा है क्या? हेलो? यस सर। हाँ, और इसको रिपल काउंटर क्यों बोलते हैं जरा बताइए, क्या ध्यान में आ रहा है? रिपल काउंटर है, आपको रिपल का वर्ड का मीनिंग मालूम है क्या? कि कौन बताएगा रिपल का मीनिंग क्या है? कोई कॉन्वेंट वाला बच्चा होगा तो ही बता सकता है, अपन बेचारे अपन मराठी मीडियम हिंदी मीडियम में पढ़े हुए लोगों को नहीं पता है। तो सुनो, इफ यू आर थ्रोइंग ए स्टोन इन अ पॉन्ड, एक तालाब में अगर आप पत्थर फेंकते हैं तो लहरें निकलती कि नहीं? उसको रिपल्स बोलते हैं। तो लहरें कैसे निकलती है आपने देखे? जहां पे अपन पत्थर फेंकते हैं वहां से लहरें निकलना शुरू होती है, फिर वो धीरे धीरे बढ़ती हुई जाती है, ऐसे 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 स्लो डाउन होते जाती है और आखिरी में डाई आउट हो जाती है। ये इसी तरीके का है। इस तरीके से सोचो कि हमने ये यहाँ पत्थर फेंका तो ये पहली लहर, और ये फिर स्प्रेड होते गई, फिर ये और भी स्प्रेड हो गई और भी स्प्रेड हो रही, यानी ये पहले हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो, फिर ये हाई हाई लो लो हाई हाई लो लो हाई हाई लो लो, फिर 4 बार लो 4 बार हाई, 4 बार लो 4 बार हाई, फिर 8 बार लो 8। इस तरीके से जो जा रहा है ये रिपल्स, इसका टाइम पीरियड बढ़ते ही बढ़ते जा रहा है। ये ध्यान में आया क्या? रिपल काउंटर आप लोगों के समझ में आया क्या? यस सर। अगर एक स्टेज समझ में आ जाता है तो बाकी सब स्टेज अपने आप समझ में आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है ना? अब इसीलिए ये वाला डायग्राम थोड़ा सा, अब रेडीमेड डायग्राम पहले ही बताता तो मजा नहीं आता आपको, थोड़ा सा ये डायग्राम, ये दिख रहा है आपको डायग्राम? हेलो? यस सर। देखो ये क्लॉक को ध्यान देखो, ये क्लॉक की निगेटिव एज आ रही है जहाँ पे, वहीं पे चेंजेस हो रहे हैं। ये 4 बीट का बताया मैंने, जान लीजिए। अब ये इसके अगर आप देखेंगे, इसके निगेटिव एज में यहाँ चेंज आ रहा है, जब इसका फॉलिंग एज आता है तब यहाँ चेंज आता है, इसका फॉलिंग एज, इसका फॉलिंग एज। इस तरीके से सिस्टमेटिक अगर समझेंगे, सेम वे में इसका फॉलिंग एज है तो यहाँ टॉगल हो रहा है, यहाँ टॉगल हो रहा है, यहाँ टॉगल हो रहा है, सेम वे इसका फॉलिंग एज आता है तो यहाँ टॉगल हो रहा है, इसका फॉलिंग एज आ रहा है तो यहाँ टॉगल हो रहा है। यही चीज समझना है, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब चीज यानी ये यानी कोई कठिन कुछ भी नहीं है। और ये याद रखना, जो हम भूल जाते हैं, जैसे ऐसे वाला डायग्राम रेफर करोगे तो अपने मन में कॉन्सेप्ट बना लेना कि काउंटिंग का सीक्वेंस कैसे लिखते हैं हम। सपोज Q2 Q1 Q0 0 0 0 0 0 1, इस तरीके से लिखते हैं ना, 0 1 0 0 1 1। तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है टॉगल होने की? Q0 की कि Q2 की? ये कंटिन्यूअस चेंज हो रहा है। हाँ, Q0 की, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है क्योंकि ये 0 1 0 1 कंटिन्यूअस हो रहा है। इसलिए जहां क्लॉक देते हैं
वो LSB रहेगा, ये याद रखना नहीं तो गलती कर दोगे, ये LSB रहेगा। फिर ये नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप कहलाएगा, इसलिए यहाँ Q0 लिखा है, यहाँ Q1 लिखा है, यहाँ Q2 लिखा है, यहाँ Q3 लिखा है, ये याद रखना है। बाकी सब ये कॉस्मेटिक्स है कि इसके सब क्लियर कॉमन कर देना वगैरह, ये सब कॉस्मेटिक्स है और उसकी भी जरूरत पड़ती, क्योंकि इनिशियली हम क्या करते हैं कि हम क्लियर लो देकर सभी के कंटेंट सबको स्टार्ट करने के लिए 0 से करते हैं और फिर ये सीक्वेंस शुरू होता है। अगर आप नंबर की तरफ भी ध्यान देंगे अब मेरे साथ में, तो आपको ध्यान में आएगा कि ये बराबर चल रहा है। कैसे? ये देखो Q2 Q1 Q0, इनिशियली क्या हो गया 000, ठीक है। Q0 को क्या दिया हुआ है, एक क्लॉक दिया हुआ है। जैसे क्लॉक का निगेटिव एज आएगा ये टॉगल होगा, बराबर है क्या, ये बताओ। यस सर। अब Q0 क्या हुआ, 0 का 1, बराबर है। यस सर। 0 का 1 होना यानी राइजिंग एज है कि फॉलिंग एज है, राइजिंग, तो नो चेंज। तो Q1 0 था तो 0 ही। अब जब 0 का 0 ही Q1 हुआ तो Q2 में चेंज आएगा क्या, नहीं, लो ही है, नो चेंज आएगा। अब इसको फिर से नेक्स्ट क्लॉक मिल रही, तो ये तो 1 का 0 होगा। अब जब 1 का 0 हो गया तो यहाँ पे निगेटिव एज टाइप काम करेगा ना, क्योंकि ये निगेटिव फॉलिंग एज है 1 to 0, ये 1 to 0 होते ही ये टॉगल करता है। पर Q1 क्या हो गया, 0 to 1 यानी राइजिंग एज, तो देयर विल बी नो चेंज। ये अगेन टॉगल करेगा क्योंकि इसको निगेटिव एज मिलती है 0 to 1। अब 0 to 1 ये राइजिंग एज है, इसलिए देयर विल बी नो चेंज, देयर विल बी नो चेंज। अब ये वापस से टॉगल कर दिया 1 to 0 फॉलिंग एज, बराबर है, 1 to 0 फॉलिंग एज, तो ये टॉगल करना चाहिए ना, तो ये टॉगल कर दिया। अब ये भी तो 1 to 0 फॉलिंग एज, अब ये टॉगल करेगा तो 0 का 1। ये समझ में आया क्या? देखो जो गिनती हम लिखते थे वहां पे ही कैसे चेंज आ रहा है, इस तरीके से ये चलते जाएगा, ये चलते जाएगा। इसलिए गिनती लिखाते वक्त मैंने तो आपको बोला था सिंपल क्या करना है, 0 1 0 1 0 1 0 1 चलते जाना, फिर 0 0 1 1 0 0 1 1, फिर 4 बार 0 4 बार 1, फिर 8 बार 0 8 बार 1। इस तरीके से भी आप लिखते हैं काउंटिंग, लेकिन आपने देखा कि इस काउंटर में ये इसी तरीके से काउंटिंग इस तरीके से करता है। सो शुड आई से यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस? ये समझ में आ गया क्या? यस सर। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि फॉलिंग एज पे ही चेंजेस आते जा रहे हैं और अपने आप गिनती बनती जाती है, काउंटिंग, इसलिए इसको नाम है काउंटर। ये 0 0 0 0, फिर इसके बाद ये 0 0 0 1, फिर ये 0 0 1 0, फिर ये 0 0 1 1, इस तरीके से चल रहा है काउंटिंग। और लास्ट में यहाँ देख रहे हैं कि 1 1 1 1 यहाँ तक आ गया और बाद में सभी रिसेट हो जाते हैं, देख रहे हैं आप। तो ये 0 to 15 मतलब कितने स्टेट हो गए, 16 स्टेट, यानी 4 स्टेज है तो 2⁴ इस तरीके से काउंट। अगर एलईडी रहते तो एलईडी उसी तरीके से ग्लो होते कि चारों ऑफ, फिर एक ऑन, फिर ये चेंज हो रहा है, तो ये कंटिन्यूसली अल्टरनेट ऑन ऑफ, ये 2 बार ऑफ, ये 2 बार ऑन, ये 4 बार ऑफ, ये 4 बार ऑन। तो इस तरीके से आपको देखने में सचमुच मजा आएगा, ठीक है। तो आज का मैं लेक्चर यहीं पे थोड़ा सा खत्म करता हूँ।